سب سے پہلے آپ کو بتائیں تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے۔ اسپیکر قومی اسمبلی نے استعفے منظور کر کے الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ تحریک انصاف کے اب تک 124 ارکان کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 11، دوسرے اور تیسرے مرحلے میں 35 اور چوتھے مرحلے میں اب 43 استعفے مزید منظور کر لیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ تحریک انصاف کے مزید 43 ارکان قومی اسمبلی کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ بیورو چیف اسلام آباد عدیل وڑائچ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، جبکہ جاوید حسین بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جاوید حسین بتائے گا، آج مزید 43 استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ جی بالکل، آج جو ہے وہ اسپیکر قومی اسمبلی کی طرف سے مزید پی ٹی آئی کے 43 اراکین کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں اور وہ الیکشن کمیشن کو ڈی نوٹیفائی کے لیے بھجوا دیے ہیں۔ اور یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج ہی کے روز میں الیکشن کمیشن کی جانب سے ڈی نوٹیفیکیشن جو ہے ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا جائے گا۔ اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ 43 اراکین کے مزید استعفے جو منظور کیے گئے ہیں، اس کے بعد مجموعی طور پر پاکستان تحریک انصاف کے 124 جو ہیں وہ اراکین کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور اس میں آپ کو بتائیں کہ 142 کا جو اراکین تھے پاکستان تحریک انصاف کے، اس میں دیکھا جائے تو اب جو ہے وہ صرف 2 ایسے اراکین ہیں جس میں سردار طالب نکئی اور نواز الہی ایسے اراکین ہیں جنہوں نے چھٹی کی درخواست دے رکھی تھی، ان کے استعفے منظور نہیں ہوئے، لیکن باقی اراکین کے تقریباً تمام اراکین کے استعفے منظور کر لیے گئے ہیں۔ اور اب اپوزیشن کی اگر تشکیل دیکھی جائے تو اس میں جو دیگر اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، جس میں جی ڈی اے کے 3 اراکین ہیں اور مسلم لیگ کاف کے 2 اراکین، اور اس میں پاکستان جماعت اسلامی کے 1 رکن ہے اور بی اے پی کے 1 رکن ہے۔ یہ مجموعی طور پر جس میں پاکستان تحریک انصاف کے 20 منحرف اراکین کو ڈالا جائے تو 27 اراکین اپوزیشن بینچز پر اس وقت فعال ہیں۔ جاوید حسین، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ۔ آگے بڑھیں گے۔ پی ٹی آئی رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ حکومت کا مقصد اپنے ایجنڈے کے مطابق الیکشن کے نتائج حاصل کرنا ہے، جبکہ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ اب پارلیمنٹ میں 40% نشستیں خالی ہیں۔ مزید استعفے منظور کرنے پر رد عمل میں شاہ محمود قریشی نے کہا کہ حکومت ایسی اپوزیشن چاہتی ہے جو اس کے انگوٹھے کے نیچے ہو۔ پی ٹی آئی کا اسمبلی واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پنجاب میں ایک متنازع شخص کو نگران وزیر اعلیٰ لگایا گیا ہے، جبکہ فواد چودھری نے کہا کہ نیشنل اسمبلی ربڑ سٹیمپ بن گئی ہے۔ 5ویں بار اسپیکر صاحب نے جوتے چھوڑ کر دوڑ لگائی۔ اب پارلیمنٹ میں 40% نشستیں خالی ہیں۔ یہ لوٹوں کے ووٹوں کے سہارے حکومت کرنا چاہتے ہیں۔ ایل این جی ریفرنس مزید چلے گا یا نہیں، فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت میں نیب پروسیکیوٹر کی شاہد خاقان عباسی اور دیگر ملزمان کی بریت کی مخالفت۔ یہ موقف اپنایا نیب پروسیکیوٹر نے کہ ملزمان کو بری نہ کیا جائے، صرف دائرہ اختیار پر عدالت فیصلہ کرے۔ ایل این جی کیس میں کرپٹ پریکٹس اور غیر شفافیت موجود تھی۔ نیب پروسیکیوٹر کی جانب سے عدالت میں یہ بتایا گیا اور بریت کی مخالفت کی، اور شاہد خاقان عباسی نے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، ملاحظہ کرتے ہیں۔ اس میں ایک بڑا حصہ اس نیب کے ادارے کا اور جسٹس جاوید اقبال کا ہے۔ ان لوگوں کو، اس ادارے کو ان باتوں کا جواب دینا پڑے گا ایک دن کہ کیوں جھوٹے کیس بناتے رہے ہیں۔ ہمیں اثاثوں کی باتیں کرتے، مجھ سے پوچھا گیا، میں نے 1985 تک 35 سال کے اثاثے آمدن اخراجات لکھ کے دیے۔ جسٹس جاوید اقبال صرف اپنے جو 4 سال یہاں پر نیب میں گزارے اس کا حساب دے جائے، میں ان کو بڑا ممنون ہوں گا، تاکہ پاکستان کے عوام کو پتہ چلے کہ اس ملک میں سیاستدان کرپٹ ہیں یا جسٹس جاوید اقبال جیسے لوگ کرپٹ ہیں۔ یہ مذاق اور یہ تماشے جو ہیں یہ برداشت نہیں کیے جا سکتے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عام انتخابات اور ضمنی الیکشن کا معاملہ۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس شروع۔ عام انتخابات اور ضمنی الیکشن کی تیاریوں پر بریفنگ۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کو ڈی نوٹیفائی کرنے سے متعلق اجلاس میں فیصلہ کرے گی۔ الیکشن کمیشن پی ٹی آئی ارکان کی ڈی نوٹیفائی نہ کرنے کی درخواست کا بھی جائزہ لے گا۔ وقار سعید ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید معلومات حاصل کرتے ہیں۔ وقار، اہم اجلاس طلب کیا گیا ہے اور کئی اہم فیصلے بھی کیے جانے ہیں۔
जी बिल्कुल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत आम इंतखाबात की तैयारियों से मुतल्लिक जो हफ्तावार इजलास है वो शुरू हो चुका है, लेकिन आज ये इजलास अहम नौइयत का है क्योंकि इससे कबल जो स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो 43 अरकानी कौमी असम्बली के जो इस्तीफ़े हैं वो भी जो है वो इलेक्शन कमीशन को अरसाल किए गए हैं। तो जहाँ पर वो पंजाब और KP के इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लेंगे, तो इसके साथ ही जो है वो जो PTI के अरकान की जानिब से जो गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन को एक दरख्वास्त दी गई थी जिसमें कहा गया था कि वो उनके इस्तीफ़े जो है वो मंजूर ना किए जाएँ, जबकि इसके अलावा जो स्पीकर की जानिब से जो इस्तीफ़े भिजवाए गए उसकी आईनी हैसियत का भी जो है वो अंदाज़ा लगाया जाएगा। जबकि इसके अलावा जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की जो मुतलका विंग है वो उस वक्त जो कमीशन इजलास है उस वक्त एक ब्रीफिंग दे रहे हैं जिसमें जो पोलिंग है पंजाब और KPK की जो पोलिंग है इसके लिए 2 अलग अलग जो तारीखें हैं वो तजवीज़ की गई है। जो पंजाब के लिए पोलिंग डे की जो तारीख है वो 1 यानी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक, जबकि खैबर पख्तूनख्वा के लिए 5 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक की जो तारीख है वो तजवीज़ की गई है। इसके अलावा जो ब्रीफिंग है उसमें बताया गया कि तकरीबन पंजाब में जो सूबाई इंतखाबात होने जा रहे हैं उसमें 53,000 से ज़ायद जो पोलिंग स्टेशन है वो जो है कायम किए जाएंगे, और इसी तरह जो KP के सूबाई हल्के हैं 115 जो जनरल नशिस्तें हैं उसके लिए 17,000 जो पोलिंग स्टेशन है वो कायम किए जाएंगे। जो सिक्योरिटी की अगर बात करें तो ब्रीफिंग जो इस वक्त दी जा रही है उसमें बताया जा रहा है कि तकरीबन इलेक्शन कमीशन को 5 लाख जो पुलिस फोर्स है वो रिक्वायर्ड होगी, और इसके साथ जो पाक फौज के जवान और जो रेंजर्स के दस्ते हैं वो भी अपने सिक्योरिटी के खिदमत जो वो आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। विफाक की वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी बना दी गई है। खदशा है हमारे सिस्टम में बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई, बेशतर इलाकों में बिजली बहाल कर दी, मुकम्मल बहाली में 2 से 3 रोज़ लगेंगे। मुल्क का तरसीली निज़ाम मुकम्मल महफूज रहा। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। आज सुबह 5:15 पर मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान का निज़ाम जो है वो बहाल हो चुका है। जो हमारे जौहरी प्लांट हैं कराची में और चश्मा में, उन्हें 48 से 72 घंटे चाहिए दोबारा शुरू होने के लिए। कोयले के प्लांट्स हैं उन्हें भी तकरीबन 48 घंटे दरकार होते हैं। अगले जो 48 घंटे हैं उनमें मुल्क में बिजली की कुछ कमी रहेगी। जो हमारा तरसीली निज़ाम है पूरे मुल्क का वो अल्लाह ताला के करम से महफूज है। वज़ीर आज़म ने एक 3 रुकनी कल इंक्वायरी टीम बनाई है जिसकी सरबराही वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कर रहे हैं। खदशा है जिसको हमने अभी रूल आउट करना है अपनी तफ्तीश के ज़रिए कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई। वेलकम बैक। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से नैब केस में प्ली बारगेन के इल्जामात आयद किए जा रहे हैं। ताहम नैब रिकॉर्ड के मुताबिक मोहसिन नकवी ने कभी किसी नैब केस में प्ली बारगेन नहीं की। तफसीलात के लिए आमिर सैयद अब्बासी रिपोर्ट करेंगे। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन रजा नकवी के खिलाफ नैब लाहौर ने 2007 में हार स्टील मिल्स में बैंक फ्रॉड केस बनाया, जिसमें हार स्टील मिल्स के डायरेक्टर शेख अफजल समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ 11 अरब रुपए के बैंक फ्रॉड का केस बनाया गया। केस में मोहसिन रजा नकवी पर 35 लाख रुपए की वाजिबुल अदा रकम बनी, जिस पर मोहसिन रजा नकवी ने रजाकाराना तौर पर रकम वापस जमा कराने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद मोहसिन रजा नकवी को मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया गया। 2018 से पहले नैब कानून में रजाकाराना रकम वापसी की शिक मौजूद थी, जिसमें अगर कोई मुल्जिम इंक्वायरी सतह पर रकम वापस कर दे तो वो मुकदमे से डिस्चार्ज या बरी तस्वुर होगा, कोई सजा होगी, ना ही जुर्माना या ना अहली। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ऑर्डिनेंस 1999 में ये 2 चीजें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। एक 25 में क्लास A थी जिसमें वॉलंटरी रिटर्न का जिक्र था, और क्लास B में प्ली बार्गेन का जिक्र था। यहाँ तक वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी साहब के केस का ताल्लुक है तो ये बिफोर अमेंडमेंट 2022 का है, तो उसमें वो केस वैसे ही फॉल नहीं करता, ना वो सेक्शन 25 उनको हिट करता है और ना ही सेक्शन 15 के तहत उनकी कोई डिस्क्वालिफिकेशन बनती है, और ना किसी हवाले से वो उसमें फॉल करते हैं। जब नैब किसी केस के ऊपर कॉग्निजेंस लेती है तो वो जब देखती है कि इंक्वायरी के दौरान वो अपने सबूत सारे इकट्ठे कर लेती है, तो मुल्जिम को एक मौका होता है, मुल्जिम के पास एक चांस होता है कि वो वॉलंटरी रिटर्न करे, प्ली बारगेन करे। इसी तरह ये जो हमारे पंजाब के अभी केयर टेकर गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर आए हैं, उन्होंने
भी इसी तरह वॉलंटियरली रिटर्न किया, जिसके बाद उनके ऊपर कोई कन्विक्शन नहीं रही, जिसके बाद वो बिल्कुल ऐसे हैं जैसे उन्होंने कोई ऑफेंस नहीं किया। 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने नैब को रजाकाराना रकम वापसी से रोकते हुए वॉलंटरी रिटर्न की शिक खत्म कर दी थी और नैब कानून में सिर्फ प्ली बार्गेन के तहत ही रकम वापसी की इजाजत दी, जिसमें मुल्जिम 10 साल की नाअहली और बतौर सजा याफ्ता तस्वुर होता है। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ, अहम अमूर डिस्कस किए गए और काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। और आपको अहम खबर से आगाह करें कि वफाकी काबीना का बड़ा फैसला सामने आया है। काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ जिसमें अहम अमूर पर बातचीत की गई, बिजली ब्रेकडाउन के हवाले से भी अमूर डिस्कस किए गए, जबकि काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का बड़ा फैसला, काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। वफाकी काबीना का इजलास हुआ और काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा जावेद हुसैन से। जी जावेद हुसैन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास जो है वजीर आजम शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हो रहा है और जो ज़राए हैं उन्होंने बताया है कि जो तोशा खाना से मुतालिक जो पॉलिसी है उस पर काबीना डिवीजन ने ब्रीफिंग दी है और इससे मुतालिक जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि तोशा खाना का रिकॉर्ड पब्लिक करने के हवाले से वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी है। और इस हवाले से जो एजेंडा था उसमें ये शामिल किया गया था कि तोशा खाना की जो बैनुल वजारती जो एक रिपोर्ट तैयार की गई थी कमेटी की जानिब से, उस पर जो कैबिनेट डिवीजन है उन्होंने ब्रीफिंग दी थी और इससे मुतालिक जो ज़राए बता रहे हैं कि अब बड़ा फैसला सामने आया है और वफाकी काबीना ने तोशा खाना से मुतालिक जो डाटा है उसको पब्लिक करने के हवाले से मंजूरी दी। काबीना ने तोशा खाना की तफसीलात पब्लिक करने की मंजूरी दे दी है। जावेद हुसैन, बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार का इनेकाद किया गया जिसमें शरीक मुल्क भर से जय्यद उलमा कराम ने नफाज शरीयत के नाम पर ताकत के इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह महाज आराई को शरीयत के रूह से ममनू करार दिया। एलामी में कहा गया है कि शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। मुफ्ती तकी उस्मानी का कहना था कि रियासत के खिलाफ कुफर का फतवा बिल्कुल गलत है। इस्लामाबाद में पैगाम पाकिस्तान सेमिनार, मुल्क भर से जैद और मुस्तनद उलमाए कराम की शिरकत। सेमिनार में वतन अजीज की सालमत को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी से खतरात का जायजा, कुरान और सुन्नत, दस्तूर पाकिस्तान और कौम की इज्तिमाई सोच के मुताबिक बयानिया तश्कील, नफाज शरीयत के नाम पर ताकत का इस्तेमाल और रियासत के खिलाफ मुसल्लह महाज अराई शरीयत की रूह से ममनुआ करार। शरपसंद अफराद के खिलाफ कार्रवाई रियासती इदारों की जिम्मेदारी है। सेमिनार का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक इस्लामी तहजीब व तमद्दुन की रूहानियत, अदल व इंसाफ और हकूक़ व फ़राइज़ में तवाज़ुन को बरकरार रखना ज़रूरी है, जिससे पाकिस्तान में मजबूत मुत्तहिद इस्लामी और जमहूरी मुआशरा बन सकता है। कौमी असम्बली और सेनेट से क़वानीन पास होने के बाद पूरे मुल्क में बतौर पॉलिसी नाफिज होने चाहिए। एलामिया में वाज़ेह किया गया है कि किसी भी बयानिए की वजह से पाकिस्तान की इस्लामी हैसियत से इनकार दुरुस्त नहीं। पैगाम पाकिस्तान सेमिनार के मुताबिक पाक फौज और दूसरी सिक्योरिटी एजेंसियों के एहलकारों को गैर मुस्लिम करार देना कानून की खिलाफ वर्जी है। अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई इस्लामी तालीमात की रूह से बगावत का संगीन जुर्म है। मुफ्ती तकी उस्मानी ने वीडियो खिताब में वाज़ेह किया कि रियासत के खिलाफ कुफर का फतवा बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान इस्लामी रियासत है, उसका दस्तूर इस्लामी दस्तूर है, उसका काम उसको बहैसियत मुसलमान के आपको तस्लीम करना चाहिए। उसके बारे में आपका इर्तिदाद या कुफर का फैसला या फतवा बिल्कुल गलत है। और ये मैंने मिसाल उस वक्त भी दी थी कि कलिमा तय्यबा पढ़कर एक आदमी मुसलमान हो जाता है तो फिर उसके बाद अमली तौर पर कमजोरियां होती हैं तो उसकी वजह से उसको काफिर नहीं कहा जाता। इसी तरह पाकिस्तान का भी मामला है, इस्लामी रियासत का भी मामला है। फिर मैंने उनको बताया कि पाकिस्तान के अंदर अगरचे अभी तक हमारी वो मंजिल अफसोस है कि हासिल नहीं हो सकी कि पूरे शरीयत नाफिज हो, लेकिन उस निफाज के तरीके में या उस निफाज के लिए सही तरीका इख्तियार करने में खुद हमसे कोताहियां हुई है। और दस्तूर में जो तरीके तजवीज़ किए गए हैं
قوانین کو اسلامی بنانے کے لیے ان پر ہم نے توجہ نہیں دی، ان کے خلاف ان کے مطابق کام نہیں کیا، اور آپ حضرات نے 20 سال تک یہ جو اسلحہ اٹھائے اور اسلحہ اٹھا کر آپ نے بچوں کو آپ نے نہیں بخشا، عورتوں کو آپ نے نہیں بخشا، علماء کو آپ نے نہیں بخشا، اور اس کے ذریعے آپ یہ بتائیے 20 سال کی جدوجہد میں کوئی ادنا تبدیلی ملک کے اندر آ سکی؟ سیمینار میں قرار دیا گیا کہ ریاست کے خلاف مصروف عمل مسلح گروہ شرعی احکامات کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپس کی محاذ آرائی کا فائدہ اسلام اور ملک دشمن قوتوں کو ہو رہا ہے۔ سیمینار میں اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں تمام طبقات سے تعلق رکھنے والے افراد ایک صف میں کھڑے ہیں۔ تفریق امیز رویوں کا ہر سطح پر مقابلہ کیا جانا ضروری ہے۔ علماء کرام نے دہشت گردی اور فرقہ پرست تنظیموں کی جانب سے نام نہاد جہاد کے نام پر بھتہ خوری کو سنگین جرم قرار دیا۔ علماء نے زور دیا کہ امن و امان قائم کرنے والے اداروں کو ان جرائم کے خلاف ایکشن لینا ہوگا۔ سیمینار کے مطابق وطن عزیز میں قائم تمام درسگاہوں کا بنیادی مقصد تعلیم و تربیت ہے۔